अभी जरा वक्त है नहीं, हम हर एक का ध्यान रखते हैं। ना वक्त आएगा सर, सारा दिन कैसे रहते नहीं है। We will have a grand celebration. एक बार let the things be all right. गोयल साहब, लेट्स स्टार्ट। यस सर, वी कैन स्टार्ट करें सर? हाँ जी कर सकते हैं सर स्टार्ट। वेरी गुड, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर। वेरी गुड इवनिंग, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ पूसा रोड सीपी स्टडी सर्कल on today's webinar on the subject issues in AGM, DPT and annual filing and latest the compliances under Companies Act. On this subject, our well-known earlier also speaker visited our study circle so many times. CS Divesh Goyal ji with us. Everybody knows and परिचित हैं हमारे गोयल साहब से, but there are few lines I would like to read for him. He is fellow member of Institute of Company Secretaries of India, having rich experience in legal and secretarial matters. He is young and energetic practicing company secretary with zeal to dig deep into the nuisance of corporate law. Being a researcher at heart, he has done rigorous research and has written various articles on Companies Act 2013 to keep at pace with the latest changes and critically analyze the implication of various provisions of the new act. His article has been published in ICSI magazine and popular at various professional websites. He has also deliberated at various forums on company law and allied matters. He has also co-authored various publications at ICSI, including Company Law Premier. This is the brief profile of our today's learned and young speaker, CS Divesh Goyal ji. And with this, I once again welcome you, sir, and welcome our other panelists, Sunil Damija ji, Rajiv Kohli ji, Ashwini Katpale ji. And with this, over to you, sir. Thank you so much, Rajesh ji. Thank you so much for inviting me again on the Pusa Road Study Circle. मतलब अब तो स्टडी सर्कल से रिलेशन बन गया है। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली काफी टाइम बाद फिजिकल सेमिनार्स में भी हमने किया है, वेबिनार्स में भी। So it's like a family with the Pusa Road Study Circle now. Yes, sir. Welcome. Thank you, Rajesh ji, for the opportunity. So as today's our topic is relating to the AGM extensions, and as I discussed with the Rajesh ji at the time of deciding the topic, तो उस टाइम ये था कि DPT 3 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे रहते हैं. So we are trying कि in today's webinar we will take up all the queries relating to the DPT 3 also, because we know DPT 3 की ड्यू डेट तो every year होती है 30th June, बस this year due to COVID situation pandemic वो ड्यू डेट इंक्रीज करके मिनिस्ट्री ने कर दी थी 30th September. So today is 14th September. In next 16 days, all the companies have to file their DPT 3. Whether you are a public company, private company, OPC, listed company, whatever type of structure हमें DPT 3 file करना है till 30th September. So there are only 16 days we have with us to file the DPT 3 form. So on the regular basis through WhatsApp groups and the different public platforms, we are receiving lot of queries on the DPT 3. So today we are trying to take up all our queries on DPT 3 in this webinar. So before starting the topic of discussions, I would request all the participants, all the 200 members participants, कि whatever queries you are having relating to the DPT 3, AGM extension, signing of the financial statement, please feel free to write in the comment box, chat box or the query box, so that we can discuss them at a length. So because एक सेमिनार या वेबिनार का मेन पर्पस है कि जब हम इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद एटलीस्ट हमारे माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए. We should be clear with all the queries. Generally फिजिकल सेमिनार्स होते हैं तो फिजिकल सेमिनार्स को हम इंटरेक्ट बनाते हैं with question answer. So here this is the webinar concept is going on. So it is my request to all the participants की queries आप please mention करिएगा comment box में, chat box में, so that we can make it little interactive also. So let's start the today's topic with the AGM extension. AGM extension से related generally we know कि ministry had recently given the circular regarding the AGM extension. Recently ministry ने एक circular pass किया था.
Generally, AGM के regarding provision mentioned as Section 96 of the Companies Act. Section 96 of the Companies Act बोलता है कि every company is required to hold at least one annual general meeting in every financial year. कि हर साल कंपनी को एक एनुअल जनरल मीटिंग करना मैंडेटरी है। और जनरली हमें पता है कि अगर हम कंपनी लॉ के कंप्लायंस की बात करते हैं तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ होते हैं कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस के, बिकॉज ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंसेस ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो एनुअल जनरल मीटिंग एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब एवरी फाइनेंशियल ईयर करनी तो है, बट एवरी फाइनेंशियल ईयर एनुअल जनरल मीटिंग को करने के लिए कितना, क्या टाइम पीरियड है, क्या टाइम गैप रहता है? तो जनरली अगर हम अदर देन ऑफिसेस की बात करें, एज पर सेक्शन 96 सबसेक्शन 1, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट वन एनुअल जनरल मीटिंग विदिन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब जब हम बात करते हैं कि हमें फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ में एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, फाइनेंशियल ईयर इंडिया में कंपनीज का क्या होता है? एज पर कंपनीज एक्ट अगर हम फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन भी देखते हैं तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर होता है कंपनीज का अप्रैल टू मार्च। 99% कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च ही होगा इंडिया में। देयर आर ओनली 1% ऑफ कंपनीज जिनका फाइनेंशियल ईयर अदर देन अप्रैल टू मार्च होता है। अब 1% ऐसी कंपनीज है जिनका अदर देन अप्रैल टू मार्च होता है। वो कौन सी कंपनीज होती है? Which type of companies can change their financial year? जब 1956 एक्ट की बात करते हैं, as almost more than 200 members are participating in today's webinar. Many of you are the seniors who have worked in the Companies Act 1956 also. Companies Act 1956 में ये था कि कंपनीज अपना फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट चूज कर लेती थी, अप्रूवल से डिपार्टमेंट की, और वैसे भी चूज कर लेती थी। बट जब 2013 आया तो 2013 में सिनेरियो बिल्कुल चेंज कर दिया। 2013 में दे मेंशन कि अदर देन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होगा। ओनली इन 3 सिचुएशन, इन सिर्फ 3 सिचुएशन ऐसी होगी जब आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो अदर देन अप्रैल टू मार्च। वो 3 सिचुएशन क्या है? वो 3 सिचुएशन है, अगर आपकी कोई होल्डिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, अगर आपकी एसोसिएट कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन आप फुलफिल करते हो, उस केस में आप रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल से, उस केस में भी आप अपने आप चेंज नहीं कर सकते हो, उस केस में आप रीजनल डायरेक्टर्स की अप्रूवल से प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो अदर देन अप्रैल टू मार्च। बट दीज आर ओनली 3 सिचुएशन। अगर मैं बात करता हूँ इन 3 सिचुएशंस के अलावा, तो कंपनीज एक्ट में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो आपको अलाउ करता है अपनी जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए, अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए अदर देन अप्रैल टू मार्च। दैट्स व्हाई आई सेड कि इंडिया में 99% कंपनीज का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है। ओनली 1% ऐसी कंपनीज होगी जिन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करवाया है, और वो चेंज करवाने के पीछे रीजन उनकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। अब यहाँ पे जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर चलो कंपनी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड भी है, होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट, उस केस में भी हमें एजीएम अपना फाइनेंशियल ईयर क्यों चेंज करवाना है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? अगर हमारी कंपनी आउटसाइड इंडिया कोई है, होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट, तो वहां वाली कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर यूज करे, हम अपना फाइनेंशियल ईयर यूज करेंगे। व्हाट which provision restricting us कि हमें अपना चेंज करवाना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर? तो अगर कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, एक सेक्शन है 134 एंड 137 जो बात करता है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 137 बोलता है कि एवरी कंपनी हैव टू कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी एंड एसोसिएट विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड अगर आप होल्डिंग कंपनी हो तो आपको अपनी सब्सिडी और एसोसिएट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करना है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। अब जनरली क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च, एंड हमारी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है जनवरी टू दिसंबर। उस केस में इशू क्या आता है कि जब हमें कंसोलिडेशन की बात आती है तो हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट नहीं करवा पाते अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ,
because of the difference in the time period. तो उस केस में मिनिस्ट्री ने अलाउ किया कि कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकती है कि अगर हम अपना फाइनेंशियल ईयर ही अगर चेंज कर लेते हैं, तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं उस केस में क्या होगा कि फॉर एन एग्जांपल हमने चेंज करके अपना फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर कर लिया है, तो हम भी फिर अपने कंसोलिडेशन के टाइम देयर विल बी नो इश्यूज. So that's why they have given the three situation in case of holding company situated outside India, in case of subsidiary company incorporated outside India, or in case of associate company outside India. इन तीन सिचुएशन में एक इंडियन कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकती है with the approval of the regional director. So 99% companies India having the financial year April to March. अब AGM का प्रोविजन सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनी को अपनी AGM होल्ड करनी है within 6 months from the end of the financial year of the company. So due date of holding of financial year, ending of financial year is 31st March. Within 6 months. So due date of holding of annual general meeting 6 months from the 31st March is 30th September. So 30th September is the due date. Up to that date, every company should hold their annual general meeting. अब इशू क्या आता है? एनुअल जनरल मीटिंग का पर्पस क्या होता है कि शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे. But due to pandemic situation, due to COVID-19, many companies fails to prepare their financial statement. Many companies are not able to complete their audit on or before 30th September. तो अगर ऑडिट 30th सितंबर से पहले कंप्लीट नहीं हो गया, as we all are the chartered accountant, more than 200 chartered accountant are here in this webinar, so you all are aware that it is little difficult for everyone to close the audit before 30th September because almost 3 to 4 months no one has worked, even not the corporate, even neither professional has worked. So many companies are not able, not in position, not in situation to hold the annual general meeting till 30th September. So everyone was planning so that we will get an extension from the MCA by filing of form. Because section 96 में एक provision है कि अगर आप कोई कंपनी अपनी AGM की ड्यू डेट में एक्सटेंशन लेना चाहती है तो उन्हें एक GNL1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. आप GNL1 फाइल कर सकते हैं, तो ROC के पास पावर है मैक्सिमम 3 मंथ का एक्सटेंशन देने का. So everyone was planning कि हम लोग एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे. But then ICAI and ICSI has made so much representation to the Ministry of Corporate Affairs, and finally Ministry has decided that they have issued the notice. Every ROC has issued the order that they are giving the general extension of 3 months to every company. तो उन्होंने सभी कंपनीज को ओपन एंडेड 3 मंथ का एक्सटेंशन ग्रांट कर दिया. So now my due date was 30th September. So 3 month के extension से I can hold my AGM this year till 31st December also. So yeah, we can say definitely this was a biggest exemption, biggest relaxation these days. Because requirement, it was a need of hour. This relaxation was need of time. So ministry realized that and they have given us extension. तो मिनिस्ट्री ने सभी ROCs के थ्रू जनरल एक्सटेंशन दे दिया है कि all the companies in India, whether you are a small company, private, public, listed, can hold their general meeting with extension of 3 months from the due date. Generally हमारी due date होती है 30th September. But now I have a question. If anyone would like to answer in the chat box, whether this extension of 3 months, like जब हमारी ड्यू डेट होती है 30th सितंबर मोस्टली, तो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन के साथ हमारी न्यू ड्यू डेट फॉर दिस ईयर इज 31st December 2020. Whether this 31st December 2020 is for all the companies, क्या सभी के लिए फिक्स हो गया कि सभी की ड्यू डेट अब 31st December 2020 हो गई है, या किसी के लिए कोई डिफरेंस डेट ड्यू डेट भी हो सकती है? Because there is a confusion in mind of the professional. I have received this query almost 100 professionals कि क्या 31st December सभी के लिए हो गई है, या कुछ कंपनीज के केस में it can be different also. Like someone has replied for new companies it is not allowed in case of first AGM. First AGM में उन्होंने extension नहीं दिया है. Agree. I am saying company is not a new company or this is not a first AGM.
क्या उसके बाद सभी कंपनीज की ड्यू डेट 31 दिसंबर हो गई है? क्या आप सभी कंपनीज जिनकी फर्स्ट एजीएम नहीं है अपनी एजीएम का 31 दिसंबर तक होल्ड कर सकते हैं? 15 months time period. Yes, sir, you got a right point. सेक्शन 96 जो एनुअल जनरल मीटिंग की बात करता है ना, उसमें एक प्रोविजन में तो लिखा है कि कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी है विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बट सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 में ही एक चीज और मेंशन की हुई है कि कंपनीज की दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कैन बी 15 मंथ। तो जनरली जब हम ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम, 6 months from the end of financial year, whichever is earlier. Now same concept shall be applicable here. Now in this situation also 3 month का extension दिया है, तो मैं जनरल याद करने के लिए हम एक concept बनाते हैं। 15 month में AGM करनी होती है, 15 में भी 3 ऐड कर दो 18 month, 6 month from the end of financial year, 6 month में भी 3 month ऐड कर देते हैं 9 month. So now 18 month from the last AGM और 9 months from the end of financial year, whichever is earlier. इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट ईयर मेरी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी 15 मई 2019 को। मेरे 15 महीने खत्म होते हैं 15 अगस्त 2020 को। तो मेरी ड्यू डेट 30 सितंबर ना होके 15 अगस्त 2020 थी। बट जब मिनिस्ट्री ने 3 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया तो मेरी न्यू ड्यू डेट हो गई है 3 मंथ फ्रॉम 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर एंड 15 नवंबर। सो इस केस में मेरी ड्यू डेट होगी इवन आफ्टर एक्सटेंशन इज 15 नवंबर, नॉट 31 दिसंबर। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें जनरल 31 दिसंबर अपने माइंड में एजीएम एक्सटेंशन को नहीं लेके चलना है। वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें दोनों कांसेप्ट चेक करने हैं कि 18 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम or 9 months from the end of financial year, whichever will be earlier, that will be our due date for holding of AGM. तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चल रहा था प्रोफेशनल्स के बीच में। That's why I thought कि हम इस टॉपिक को आज लेते हैं। डेफिनेटली बड़ा टॉपिक नहीं था, 10-15 मिनट का ही था, बट नाउ वी आर हैविंग अ क्लैरिटी कि ड्यू डेट क्या होगी कंपनीज के केस में। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन काफी सारे कॉर्पोरेट्स का प्रोफेशनल का भी मेरे पास आया था, तो आई वुड लाइक टू डिस्कस विद एवरीवन कि अगर आपके माइंड में भी वो क्वेश्चन होगा तो क्लियर हो जाएगा। देयर वाज अ क्वेश्चन कि मिनिस्ट्री ने ड्यू डेट तो एक्सटेंड कर दिया एजीएम की, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 30 सितंबर के बाद साइन हो सकते हैं? क्या इसको 30 सितंबर के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर साइन करते हैं तो किसी सेक्शन का डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा? किसी कंपनीज एक्ट के सेक्शन का नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो जाएगा कि हम 30 सितंबर के बाद अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करते हैं? तो दिस वाज आल्सो अ क्वेरी ऑफ द प्रोफेशनल अलोंग विद द एजीएम। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आ रहा था कि एजीएम से एक्सटेंड कर दिया है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की साइनिंग के लिए तो कोई रिलैक्सेशन ही नहीं दी, उसके लिए कुछ भी नहीं दिया। तो उसके लिए अगर हम डिस्कस करते हैं सेक्शन जो 137 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो सेक्शन बोलता है कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करवाएगी, अप्रूव करा के एजीएम के नोटिस के साथ शेयर होल्डर को सर्कुलेट करेगी और शेयर होल्डर उसे अडॉप्ट करेंगे। सो जनरली अगर हम कंपनीज एक्ट स्टडी करते हैं, पूरे कंपनीज एक्ट में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने की ड्यू डेट क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने की कोई ड्यू डेट एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है। जनरली हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ड्यू डेट लेकर चलते हैं वो हम ये मान के चलते हैं कि एजीएम से पहले साइन हो जाना चाहिए, बिकॉज एजीएम के नोटिस के साथ हमें सर्कुलेट करना है। तो एजीएम जनरली क्या होता था 30 सितंबर को होती थी, हम ये मानते थे शॉर्टर नोटिस पे भी करेंगे, सुबह हमने नोटिस दिया शाम को एजीएम कर ली, तो मैक्सिमम हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करते हैं 30 सितंबर तक कर लेते हैं। सो एक्ट में कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हमें 30 सितंबर तक की साइन करनी है। एक्ट में प्रोविजन है जनरल मीटिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल ईयर को साइन करने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने की कोई ड्यू डेट नहीं है। सो अगर जब अब इस केस में दिस ईयर जब हमें एक्सटेंशन मिल गई है मिनिस्ट्री से, जब एक्सटेंशन मिलने के बाद हमारी ड्यू डेट 30 सितंबर से आगे चली गई है, तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फ्रीली विद द कंप्लायंस ऑफ लॉ भी 30 सितंबर के बाद साइन कर सकते हैं। ओनली वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि एजीएम से पहले साइन हो जाना चाहिए, जो एजीएम का नोटिस की डेट है उससे पहले हमारे साइन हो जाने चाहिए।
So as 2% has already mentioned in the chat box कि 15 month से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 AGM में. I think that provision I have cleared कि 15 से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. But this year 3 month का extension है तो हम 15 में हम 3 को ऐड कर देते हैं, वो 18 month मान के चलते हैं. So this year now there is no liability on the companies कि उन्हें 30 सितंबर से पहले ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने हैं या 30 सितंबर तक उनको ऑडिट क्लोज करनी है. Even after 30th September also you can close the audit and complete the financial statement. So whatever your due date, whatever will be due date for your company, due date for AGM for your company. Because मैं दोबारा अपना सेंटेंस रिपीट करता हूँ, 31 दिसंबर 2020 सभी के लिए नहीं है. हमें फोकस करके चलना पड़ेगा कि हमारी कंपनी की केस में, as we all are the professionals, we are working for many companies as a practicing chartered accountant. So हमारे पास बहुत सारी कंपनीज है तो हमें सभी कंपनीज का डाटा मेंटेन करके चेक करना पड़ेगा कि क्या सभी कंपनीज के केस में हमारी 31 दिसंबर आ रही है या किसी कंपनी के केस में पहले भी आ रही है. बिकॉज जिस कंपनी के केस में पहले आ रही होगी हमें उसकी एजीएम पहले करनी पड़ेगी और उसके फाइनेंशियल्स भी अकॉर्डिंगली अडॉप्ट एंड अप्रूव करने पड़ेंगे. सो एजीएम से रिलेटेड अगर किसी की कोई क्वेरी है तो यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स. बिकॉज ज्यादा टिपिकल नहीं है ये पॉइंट, बट स्टिल छोटे छोटे पॉइंट्स पे कई बार हमें इश्यूज होते हैं तो यू कैन क्लैरिफाई दैट पॉइंट. वी आर ओपन फॉर दैट. नेक्स्ट टॉपिक अगर हम डिस्कस करते हैं, अभी जो मिनिस्ट्री का चल रहा है, एक्सटेंशन का चल रहा है, अलग अलग एक्सटेंशन चल रही है, अलग अलग ड्यू डेट्स चल रही है. तो वी आर इन द मंथ ऑफ सितंबर. लास्ट 5 मंथ से आरओसी की कोई भी फाइलिंग करना मैंडेटरी नहीं था. मिनिस्ट्री ने रिलैक्सेशन दी हुई थी कि अगर आपको कोई भी फाइलिंग आरओसी की करनी है, प्रीवियस ईयर्स की भी और लास्ट 5 मंथ्स की भी, आप 30 सितंबर तक कर सकते हो. तो 30 सितंबर इज अ वेरी क्रूशियल डेट फॉर अस, फॉर एवरीवन, बिकॉज हम सभी को 30 सितंबर से पहले अपनी एनुअल जनरल मीटिंग, अपनी 30 सितंबर से पहले अपनी काफी सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़ेंगे. मैं थोड़ा सा ड्यू डेट्स को रिवाइज कर देता हूँ so that even if anyone want to write down तो वो लिख भी सकते हैं. First due date is 30th September for the DIR3 KYC. 30th September तक each and every person who is holding DIN number, that person is required to done the KYC. So DIR3 KYC due date is 30th September. 30th September तक DIR3 KYC सभी पर्सन्स का फाइल हो जाना चाहिए. और DIR3 KYC भी दो टाइप के हैं. एक है DIR3 KYC ई फॉर्म, एक है DIR3 KYC वेब फॉर्म. अब जनरली मैंने देखा है कि हमें बहुत सा टाइम, समटाइम देयर इज अ कंफ्यूजन इन प्रोफेशनल्स कि DIR3 KYC हमें वेब फॉर्म फाइल करना है या DIR3 KYC हमें ई फॉर्म फाइल करना है. तो इस चीज को हम थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं कि हमें वेब फॉर्म फाइल करना है या ई फॉर्म फाइल करना है. अगर जिस पर्सन ने लास्ट ईयर अपना DIR3 KYC फाइल किया था, लास्ट ईयर जब DIR3 KYC फाइल किया था तब से लेके अब जब हम फाइल कर रहे हैं, इस पीरियड में अगर उसके किसी पर्टिकुलर्स में चेंज है, चाहे उसके ईमेल आईडी में, फोन नंबर में, किसी और पर्टिकुलर में चेंज है, तो इस पीरियड में अगर किसी पर्टिकुलर में चेंज है तो हमें ई फॉर्म DIR3 KYC फाइल करना पड़ेगा. और अगर उसके पर्टिकुलर्स में चेंज नहीं है, पर्टिकुलर्स एग्जैक्टली सेम है जो लास्ट ईयर थे, तो हम डायरेक्टली वेब बेस्ड ई फॉर्म KYC भी फाइल कर सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन DIR3 KYC एंड ई फॉर्म KYC. अब सम टाइम लोगों का, प्रोफेशनल का या डायरेक्टर्स का इशू होता है कि ईमेल आईडी और फोन नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं. क्या DIR6 फॉर्म एक होता है जो डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर चेंज करने के लिए, उसके थ्रू हम ईमेल आईडी और वो चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं. तो DIR6 में पर्टिकुलर चेंज तो हो सकते हैं, बट दिस डेज DIR6 वर्क नहीं कर रहा है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए. तो जिस पर्सन को अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज करना है उन्हें तो DIR3 KYC ई फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. अदर केसेस में हम वेब फॉर्म फाइल कर सकते हैं. तो 30th September is the due date for the filing of DIR3 KYC. DIR3 KYC हमें हर पर्सन का फाइल करना होता है, चाहे वो पर्सन डायरेक्टर है या नहीं है, चाहे उस पर्सन ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है,
अगर उस पर्सन ने कंपनी से रिजाइन भी कर दिया है, स्टिल इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल DR3 KYC, बिकॉज जो ये DR3 KYC फॉर्म है ना, ये कंपनी बेस्ड फॉर्म नहीं है, इट इज अ पर्सन बेस्ड फॉर्म। ये पर्सन टू पर्सन अप्लाई करता है कि अगर एक पर्सन ने डिन लिया है तो उसको KYC फाइल करना ही पड़ेगा एवरी ईयर, अब चाहे वो कंटिन्यू करता है एज अ डायरेक्टर या कंटिन्यू नहीं करता। और दिस ईयर सबसे अच्छी चीज क्या है, मिनिस्ट्री ने जो CFSS स्कीम लाए थे उसके अकॉर्डिंग अगर आपका पिछले सालों का भी कोई DR3 KYC पेंडिंग है तो आप 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं, आपको कोई एडिशनल फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो इट इज माय सजेशन टू ऑल द प्रोफेशनल्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि अगर आपके ऐसे कोई भी डायरेक्टर्स हैं, आपके ऐसे कोई भी पर्सन्स हैं जिनका DR3 KYC लास्ट ईयर फाइल नहीं हुआ था, तो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम, तो वो इस साल अपना DR3 KYC फाइल कर सकते हैं और दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द CFSS स्कीम। सो दिस इज द फर्स्ट ड्यू डेट। अब सेकंड ड्यू डेट क्या है इस मंथ में? इस मंथ की सेकंड ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म DPT3। आज के इस वेबिनार में हम DPT3 को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं ड्यू डेट को डिस्कस कर रहा हूँ कि DPT3 की ड्यू डेट थी 30 जून, बट जैसा हमने डिस्कस किया है कि मिनिस्ट्री ने कंपनी लॉ फ्रेश सेटलमेंट स्कीम पास की थी जो है मार्च में, उसके अकॉर्डिंग 30 जून तक हम नहीं फाइल करके हम अपना DPT3 हम 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। 30 सितंबर तक DPT3 फाइल करते हैं तो हमें कोई एडिशनल फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर हम 30 सितंबर के बाद अगर 1 अक्टूबर को भी फाइल करते हैं ना, तो हमारी जो एडिशनल फीस काउंट होगी वो एडिशनल फीस 30 जून से काउंट होगी, फिर वो एडिशनल फीस 30 सितंबर से काउंट नहीं होगी। बिकॉज जनरली हमारे माइंड में क्या रहता है कि 30 सितंबर तक तो मिनिस्ट्री ने ड्यू डेट कर दी है, तो हम 30 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर को फाइल करेंगे तो 10 दिन का डिले हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एडिशनल फीस लगेगी, बट इट इज रॉन्ग। एक्चुअल ड्यू डेट DPT3 की थी 30 जून। अब अगर हम 30 जून के बाद DPT3 फाइल करते हैं, 30 जून के बाद अगर हमारा DPT3 फाइल हो रहा है तो आपकी जो 30 सितंबर के बाद फाइल हो रहा है तो आपकी एडिशनल फीस 30 जून से लेके आज तक की कैलकुलेट होगी। तो बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। अभी DPT3 के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वेबिनार में। दिस वाज द सेकंड ड्यू डेट। थर्ड ड्यू डेट इस 30 सितंबर है MSME1 फॉर्म। हमें पता है MSME1 फॉर्म लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया था। MSME1 फॉर्म हमें एवरी हाफ ईयर फाइल करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ हाफ ईयर। तो जो हमारा हाफ ईयर 31 मार्च को एंड हुआ उसकी ड्यू डेट थी 30 अप्रैल, बट उस टाइम पूरी कंट्री में लॉकडाउन चल रहा था, पेंडेमिक सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19। तो 30 अप्रैल तक हमें फाइल करना था। अब जिन कंपनीज ने 30 अप्रैल तक DPT3 नहीं फाइल किया, सॉरी MSME1 नहीं फाइल किया है, वो भी CFSS स्कीम के अंडर MSME फॉर्म को 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। 30 सितंबर तक फाइल कर देंगे तो इसे कोई नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा, कोई कंपनी पे एडिशनल फीस या पेनल्टी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। दिस इज द थर्ड ड्यू डेट फॉर दिस फाइनेंशियल फॉर दिस मंथ September 2020। फोर्थ ड्यू डेट इज LLP11। अब LLP11 की ड्यू डेट होती है 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31, LLP का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च को। 2 मंथ के अंदर उन्हें LLP11 फॉर्म फाइल करना था। सो LLP11 की ड्यू डेट में मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दी थी। अब 30 सितंबर तक आप लोगों के पास जितनी भी LLPs है, जितने भी LLPs के लिए आप वर्क कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो सभी LLPs 30 सितंबर तक अपना LLP11 फाइल कर दे। अगर 30 सितंबर तक LLP11 नहीं फाइल हुआ तो 1 अक्टूबर को जो एडिशनल फीस काउंट होगी वो काउंट होगी 1 जून से 50 रुपीज पर डे। LLP के अंदर एडिशनल फीस पर डे है, तो आपकी जो एडिशनल फीस काउंट होगी वो 50 रुपीज पर डे 1 जून से काउंट होगी टिल द डेट यू डोंट फाइल। सो सितंबर मंथ में नो डाउट कंपनी लोग के कंप्लायंसेस की बात करें तो बहुत सारे कंप्लायंसेस करने हैं। दिस इज अ प्रेशर ऑन द प्रोफेशनल आल्सो, बट अगर इस टाइम में हम कंप्लायंस कर लेते हैं तो हमें कोई भी एडिशनल फीस या वो पे नहीं करना पड़ेगा।
These are the 4 due dates of this month till 30th September. अभी कुछ प्रोफेशनल की क्वेरीज आई हुई है, उन क्वेरीज को भी मैं ले लेता हूँ, साथ में किसी और की भी इन ड्यू डेट से या एजीएम से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेंशन करिए, then we will move to the next point. Someone has mentioned one more time example repeat sir, taking example of AGM 30th September. अगर हमारी AGM की ड्यू डेट बनती है 30th September, whichever is earlier करके भी हमारी 30th September बनती है, तो उस केस में एक्सटेंशन के बाद हमारी ड्यू डेट हो जाएगी 31st दिसंबर. बट अगर whichever is earlier करके हमारी ड्यू डेट 30th September नहीं बनती है, 15 September बन जाती है एग्जांपल, उस केस में हमारी नेक्स्ट न्यू ड्यू डेट होगी 15 September प्लस 3 मंथ दैट इज 15 दिसंबर. सो जब भी हम ड्यू डेट काउंट करेंगे तो whichever is earlier का फॉर्मूला लगा के ही काउंट करेंगे. हाँ, समवन मेंशन कि लास्ट ईयर हमने DI3 केवाईसी नहीं फाइल किया था, तो पहले हम पिछले साल का फाइल करेंगे फिर इस साल का फाइल करेंगे. DI3 केवाईसी का फिलहाल एक अच्छी चीज है, अगर हमने पिछले साल नहीं फाइल किया था तो इस साल फाइल करेंगे जब, तो वो प्रीवियस ईयर्स के लिए अलग से फाइल नहीं करना पड़ेगा, वो सिंगल ही फाइल होगा हमारा. There is one more query from Mr. Anil Mehta. For new company registered on 18th May, holding first AGM, 18th May 2019, holding first AGM, what will be the extended due date? As they mentioned in the circular कि first AGM के लिए उन्होंने extend नहीं किया है, क्योंकि first AGM तो already आप 9 month from the end of financial year के according कर ही सकते हैं. तो आपका financial year 31st मार्च को close हुआ, तो 9 month मतलब आप already अपनी first AGM 31st दिसंबर तक कर सकते हैं. There are some queries in question answer point. How many days of notice of AGM is to be given as per provision of 101 of the Companies Act? Company is required to give clear 21 days notice of the AGM. So clear 121 days means up to 23 days. तो 23 days का companies को AGM hold करने का notice देना पड़ता है. But there is a provision in the act. Act में provision है कि company shorter notice पे भी AGM कर सकती है अगर 95% of shareholders की approval मिल जाती है. तो now it's depend upon the company कि वो shorter notice पे करना चाहते हैं या फिर वो 21 days का clear notice देके ही hold करना चाहते हैं. Next query, my query is relating to PS6. Someone has mentioned a query relating to the PS6. PS6 I will just take after all the other queries. Is need to file any form to ROC? Mr. Ravi Surekha ji has asked the question, is need to file any form to ROC? Sir, please clarify your question about which form you are asking for. Next question. Do we need to file KYC of DIN number taking after 31st March 2020? If DIN number is taken after 31st March 2020, then this year there is no need to do the KYC for such DIN holders. Next question from Mr. Rajesh Sabharwal. In case of company incorporated in 2019-20, do we need to file Form DPT-3 for the financial year 19-20? Yes. If company incorporated any day before 31st March, you require to file the DPT-3 because ministry has not given any extension for the such companies. Next question is that, can we file last year annual return without late fees in case of company or LLP? Yes. There is a scheme going on. Company Law Fresh Settlement Scheme. Ministry have launched the scheme, Company Law Fresh Settlement Scheme. According to that Company Law Fresh Settlement Scheme, any pending form, मैं नहीं बोलूंगा कि लास्ट ईयर का कोई पेंडिंग फॉर्म है या लास्ट 5 ईयर का या लास्ट 10 इयर्स का, पिछले 50 साल का कोई पेंडिंग फॉर्म है, तो आप 30 सितंबर से पहले वो फॉर्म अगर फाइल कर देते हैं तो आपको कोई एडिशनल फीसेस नहीं पे करनी पड़ेगी, whether it is a company or it is a LLP. How could we know? Someone has mentioned, how could we know that DI3 KYC web base is due? अब ये चेक करने के लिए कि फॉर्म का DI3 KYC वेब बेस ड्यू है या नहीं है, अगर या तो आप फॉर्म फाइल करेंगे और ऑलरेडी डायरेक्टर फाइल कर चुका होगा तो वो फॉर्म आपका एरर दे देगा, दोबारा फॉर्म फाइल नहीं होगा. और ये चेक करना है कि हमें DI3 KYC वेब बेस फाइल करना है या DI3 KYC
ई फॉर्म फाइल करना है, उसके लिए तो ओनली डायरेक्टर कैन टेल यू कि लास्ट टाइम जब फॉर्म फाइल किया था तब से लेके अभी तक कोई पर्टिकुलर्स में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है. Next question is that Mr. Rakesh Bhargava, in case of companies, when balance sheet should be signed by auditor, can it be signed in November 2020? Yes. As per Companies Act, Ministry have extended the due date for holding of AGM. As Ministry have extended the due date of holding of AGM, जब तक आप AGM से पहले एनी टाइम AGM का जो नोटिस इशू करते हैं उससे पहले एनी टाइम कंपनी कैन डायरेक्टर कैन साइन द बैलेंस शीट. सो जब डायरेक्टर साइन करेंगे ऑडिट उसके बाद ही होगी, तो ऑडिटर कैन आल्सो साइन द बैलेंस शीट इन द नवंबर मंथ आल्सो दिस टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज how the net worth as on 31st March 19 shall be shown in case of newly company incorporated. In that case, sir, definitely I would like to answer on the provisional basis you have to prepare the financial statement, because definitely you are preparing the financial statement for the income tax return also. So you will calculate the net worth there also. So accordingly you have to mention in the DPT3 form. Why delay is approving the DPT3 by MCA? Why delay is approving? So this question can be answered by the early ROC person. Why they are taking so much time of approval of the DPT3 form? Because there may be many reasons, many technical reasons, or many guidelines reason of the ministry also. Next question is that can company law fresh settlement scheme avail directly, or do we need to file any form for opting this scheme? This is a good question. अगर हम कोई भी फॉर्म फाइल कर रहे हैं कंपनी लॉ सेटलमेंट स्कीम का बेनिफिट लेके ड्यू डेट के बाद, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि DPT3 फॉर्म की ड्यू डेट होती है 30th जून. DPT3 फॉर्म हमें 30th जून तक फाइल करना होता है, बट 30th जून तक DPT3 इस साल हमने फाइल नहीं किया था. इस साल हम DPT3 फाइल करते हैं 30th सितंबर तक कंपनी लॉ फ्रेश सेटलमेंट स्कीम का बेनिफिट लेके. तो आपको स्कीम अडॉप्ट करने के लिए तो कोई फॉर्म सेपरेटली नहीं फाइल करना है. स्कीम अडॉप्ट करने के लिए आपको कुछ अलग कंप्लायंस नहीं करना है, बट डेफिनेटली आपको एक कंप्लायंस करना है. 30 सितंबर से पहले आपके जितने पेंडिंग फॉर्म है सारे फाइल कर लो. उसके बाद मिनिस्ट्री 1 अक्टूबर से एक नया फॉर्म लॉन्च करेगी, CFSS फॉर्म, कंपनी लॉ फ्रेश सेटलमेंट स्कीम फॉर्म. आपको वो फॉर्म फाइल करना है 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में. उस फॉर्म में आपको वो सारे SRN लिखने हैं जितने फॉर्म आपने इस पीरियड में फाइल किए हैं स्कीम का बेनिफिट लेके. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर AGM held on 30th June 2019. This year if we conduct AGM on 30th September, then the gap between two AGM work out to 18 months, whereas the gap between two AGM is 15 months. Then how to go? अगर लास्ट ईयर हमने 30th जून को होल्ड की थी तो हमारे 15 महीने बनते हैं 30th सितंबर को. बट एज आई सेड कि मिनिस्ट्री ने 3 मंथ की एक्सटेंशन भी दी है, तो आपके केस में जनरल ड्यू डेट 15 मंथ के अकॉर्डिंग बन रही थी 30th सितंबर, बट मिनिस्ट्री ने 3 मंथ एक्सटेंड की है. तो 30th सितंबर का आप 3 मंथ ऐड करेंगे तो आपकी ड्यू डेट बनेगी 31st दिसंबर. सो इस केस में हमारी ड्यू डेट 31st दिसंबर हो जाएगी. And there is some question in the chat box. I would request all the participants कि questions आप chat box की बजाय Q&A column में mention कर दे, so that it will not create any difficulty to get the questions from the chat box. चैट बॉक्स के सर ना लो, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर. Yes sir. तो मैं Q&A से ही ले रहा हूँ. Q&A में जो भी queries है. जी सर, जी सर. Okay, so someone has mentioned one more query in the Q&A. There is any option to mention that the particular form is filed under CFSS, so that particular form does not ask for additional fees. As on date, Ministry have made some changes in their system itself. Ministry ने अपने systems में थोड़ा change किया है. System में change ऐसा किया है कि आज की डेट में अगर कोई फॉर्म 30 सितंबर तक कोई भी फॉर्म आपका ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम एडिशनल फीस देगा ही नहीं. We have tried to file many form. मिनिस्ट्री ने अपने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिए हैं. 30 सितंबर तक कोई एडिशनल फीस ही नहीं आएगी. तो आपको ऐसा कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हम CFSS में फाइल कर रहे हैं. आपको एक चीज डेफिनेटली करनी पड़ेगी, आपको एक चीज अपने माइंड में जरूर रखनी पड़ेगी कि 30 सितंबर के बाद आपको CFSS फॉर्म जरूर फाइल करना है.
Next question is that then we have to file CFSS form previous year DIR3 KYC so that it will ask for additional fees. As I said कि 30 सितंबर तक तो कोई कोई एडिशनल फीस आएगी ही नहीं ना. 30 सितंबर तक तो आप कोई भी फॉर्म फाइल करो. Next question is I am unable to file STK2 due to delay in approving of DPT3 form. What is the option available, sir? According to me, if you ask me advice as a professional, I will advise you to raise a query on the website of the Ministry of Corporate Affairs, or if it is possible to visit the ROC and ask them to clear your form so that you can take the benefit of the or file the STK2 form. Next question is last year KYC not filed. Can we this year KYC also without any late fees? Yes, sir. अगर 30 सितंबर तक अगर आप KYC का फॉर्म फाइल करते हो तो लास्ट ईयर की है या नहीं किया, इस साल आपको कोई एडिशनल फीस पे नहीं करनी पड़ेगी. So these are the some points for relating to the DIR3 KYC. We can say AGM से related. These were the some our points. Now एक और point है. अभी हमने डिस्कस किया कि इस सितंबर मंथ में 4 ड्यू डेट्स थी. 4 ड्यू डेट है DIR3 KYC की 30 सितंबर, DPT3 की 30 सितंबर, MSME 1 की 30 सितंबर, LLP 11 की 30 सितंबर. But there is a one more form. एक और फॉर्म लॉन्च हुआ था अभी जुलाई मंथ में, that is PAS 6 फॉर्म. मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेता हूँ इस फॉर्म को ब्रीफ करने को. पहली चीज जो ये PAS 6 फॉर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, वो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे. PAS 6 फॉर्म लिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता. So PAS 6 form is not applicable on the private companies. PAS 6 form private पे भी नहीं applicable होता, listed पे भी नहीं applicable होता. PAS 6 form जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे ही applicable होगा. 2018 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2018 10 सितंबर 2018 को मिनिस्ट्री एक रूल लेके आई थी, रूल 9A ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट्स रूल 2014. उस रूल के थ्रू एक नया रूल 9A ऐड किया कंपनीज एक्ट में. उस रूल 9A में ये मेंशन किया कि ऑल द पब्लिक कंपनीज शैल कन्वर्ट देयर शेयर इनटू डीमैट विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2018. 2 अक्टूबर 2018 को स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया कि 2 अक्टूबर 2018 के बाद सभी पब्लिक कंपनीज के शेयर डीमैट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए. सभी पब्लिक कंपनीज डीमैट अकाउंट ओपन करेगी. सो उस डीमैट अकाउंट को ओपन करेगी, शेयर्स कन्वर्ट करेगी, बट एक प्रोविजन ऐड किया कि एवरी पब्लिक कंपनी एवरी हाफ ईयर विद इन 60 डेज ऑफ एंड ऑफ हाफ ईयर एक फॉर्म फाइल करेगी मिनिस्ट्री के पास, दैट इज PAS 6 फॉर्म. सो दिस PAS 6 फॉर्म हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को फाइल करना पड़ता है. हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को PAS 6 फॉर्म फाइल करना पड़ता है विद इन 60 डेज ऑफ एंड ऑफ हाफ ईयर. हमारा हाफ ईयर 31 मार्च को एंड हुआ तो 30 मई तक हमें फाइल करना पड़ता है. हाफ ईयर 30 अक्टूबर तक एंड हुआ, सितंबर पे एंड हुआ तो 30 नवंबर तक फाइल करना पड़ता है. तो एवरी हाफ ईयर हमें फाइल करना पड़ता है, मतलब साल में 2 बार ये फॉर्म, ईयर में 2 बार हमें ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है. अब इस फॉर्म को फाइल करने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट है ISIN नंबर. ISIN नंबर डालना पड़ता है इस फॉर्म में. और ISIN नंबर एक कंपनी को तभी मिलता है जब कंपनी अपना डीमैट अकाउंट, डीमैटलाइजेशन अकाउंट ओपन करती है. तो 2 अक्टूबर 2018 से सभी पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो गया था डीमैट अकाउंट ओपन करना. तो जिन कंपनीज ने कर लिया बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो लोग पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए PAS 6 फॉर्म फाइल करना अभी. और PAS 6 नहीं फाइल करते तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा. और PAS 6 की ड्यू डेट थी 13 सितंबर. Yesterday was the due date. There is a one clarification is pending from the ministry कि क्या PAS 6 फॉर्म CFSS स्कीम में कवर होता है या नहीं होता. ये क्लैरिफिकेशन अब मिनिस्ट्री को अभी पेंडिंग है कि PAS 6 कवर होता है या नहीं होता है. बट अदरवाइज PAS 6 सितंबर ड्यू डेट थी PAS 6 की. अब PAS 6 पे 2 क्वेरीज है 2 पर्संस की, मैं एक एक करके टेकअप करता हूँ. I am upset of the fact that this is not covered under today's topic, but as you please answer that if a company is governed by regulator
is a company is governed by regulator and has not received certificate of commencement of business from the regulator. Then how to file INC 20A with period of 180 days has exceeded. See, first thing, okay, if your company is governed by 180 days अगर extend हो गए हैं, तो आप फाइल कर सकते हो एडिशनल फीस के साथ, उसमें कोई इशू नहीं है. बट जब तक आप ये फॉर्म नहीं फाइल करते, बस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते हो. सो आपको वेट करना पड़ेगा. जब आप उसको गवर्निंग अथॉरिटी से, आपको रेगुलेटर से अप्रूवल मिल जाएगा, तो उसके बाद आप फॉर्म 20A फाइल करो और उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो. Now someone has asked the query relating to the PS6. A closely held company having 10 shareholders has share in physical form and do not want to convert into demat form because of the regular cost. They intend to convert it into private company. My question is from PS6 required ISIN number. How can we give ISIN number if all shares are in physical form? What are the consequences for not filing of PS6 form? Can the company be converted into private without converting? I will take one by one. How can we give ISIN number if all the shares are in physical form? So I would like to say on this point, shareholders ने अपने shares डीमैट में convert किए हैं या नहीं किए हैं, उस चीज का ISIN नंबर से कोई रिलेशन नहीं है. ISIN नंबर कंपनी का नंबर है. कंपनी को अपना डीमैटेलाइजेशन अकाउंट खोलना है. जो कंपनी डीमैटेलाइजेशन अकाउंट खोलेगी, ISIN उस चीज के लिए मिलेगा कंपनी को. तो पहली चीज, शेयर होल्डर को कन्वर्ट करवानी है नहीं करवानी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमें ISIN अप्लाई करना पड़ेगा. What are the consequences of not filing of PS6? अगर PS6 नहीं फाइल करते, it is a non-compliance of Rule 9A. और Rule 9A की पेनल्टी लिखी है सेक्शन 450 में. उसकी पेनल्टी है, एक तो जब हम फॉर्म फाइल करेंगे तो हमें एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, और दूसरा हमें एक ROC कैन आस्क फॉर द पेनल्टी. पेनल्टी है कंपनी और डायरेक्टर्स पे 10,000 रुपीज प्लस 1,000 रुपीज पर डे. Third question is, can the company be converted into private limited companies without converting the shares into demat form? As I already said कि ये प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट में है, ये वाले प्रोविजन जो PS6 से रिलेटेड है, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू डीमैट है, ये एप्लीकेबल हो गए थे 2 अक्टूबर 2018 से. नाउ टुडे इज द 14 सितंबर 2020. ऑलमोस्ट 2 ईयर पास हो गए हैं. आज की डेट में आप कन्वर्ट करवाने जाते हो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक को प्राइवेट में, तो आई कैन नॉट से कि आरडी रीजनल डायरेक्टर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा या कोई पेनल्टी लगाएगा या नहीं लगाएगा. बट इफ दे वांट, डेफिनेटली दे कैन इंपोज द पेनल्टी ऑन द कंपनी कि आपने लास्ट 2 सालों से ISIN नंबर नहीं लिया है, तो मतलब आप लास्ट 2 सालों से कंपनीज एक्ट का नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं. Now someone has asked, if a company has been converted from public to private in Jan 2020, जब आप already public to private convert कर ही चुके हैं, आज की डेट में आपका स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपको ISIN नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब someone has asked one more question कि CFSS फॉर्म इस कब तक फाइल करना है. CFSS फॉर्म हमें 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में फाइल करना है. So we have taken up all the queries relating to these points. Now let's start discussion on our next topic. That is, I think, required by all the chartered accountant attending this session is relating to the DPT3 form. DPT3 always a very crucial topic for everyone. जब भी मैंने कभी DPT3 के regarding discussion किया है, तो there are always lot of queries are there, always lot of points are there which everyone is required to understand. Hope my screen is visible to everyone. So as we know कि every companies, अब companies के केस में क्या होता है, जैसा कि हमें पता है कि mostly we all are the chartered accountant company secretaries are here. Almost 250% we are attending this webinar. Many of us are the practicing chartered accountant, or many of us are working in the companies. तो बहुत सारी कंपनीज के कंप्लायंसेस हमें करने पड़ते हैं. मोस्टली इन इंडिया देयर इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. अगर हम इंडिया में कॉर्पस देखेंगे तो 70 to 75% प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है.
तो हमारे क्लाइंट बेस में भी 7 to 75% और इवन 80% तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। और जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात आती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे माइंड में, परमिसेबल डिपॉजिट्स। प्राइवेट कंपनी को कहां से लोन लेना अलाउड है, कहां से लोन लेना अलाउड नहीं है। एक डिपॉजिट ऐसा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का जिसमें लास्ट 7 सालों में 2014 में एक्ट आया था, 2020 चल रहा है। डिपॉजिट ऐसा प्रोविजन है कि जिसमें लास्ट 7 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 अमेंडमेंट्स आए हैं। मतलब 30 to 35 अमेंडमेंट डिपॉजिट के सेक्शन में आए हैं। तो ऑलवेज ये बहुत कंफ्यूजिंग और बोल सकते हैं कि ऑलवेज एक बहुत टिपिकल टॉपिक रहता है सभी के लिए डिपॉजिट्स को लेकर। और लास्ट ईयर से जब से ये डीपीटी 3 फॉर्म लॉन्च हो गया है, जब से ये डीपीटी 3 को लॉन्च किया है, तब से तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टॉपिक हो गया है। बिकॉज डीपीटी 3 के बाद क्या हो गया है, अभी तक तो हमें अपनी बैलेंस शीट्स में दिखाना होता था कि कंपनीज ने कहां से लोन लिया है, साल में कितना लोन लिया है, कितना रीपे कर दिया है, दैट्स इट। जबकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 73 बोलता है कि कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना होता है कि कौन सा डिपॉजिट है, कौन सा नॉन डिपॉजिट है। ये सब अपनी कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करना होता है। अब कौन सा डिपॉजिट है, कौन सा नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इफ वी विल चेक द बैलेंस शीट, 70 to 80% बैलेंस शीट it was not mentioned कि this loan is deposit or not। एक रीजन तो इसके पीछे ये था कि अभी हमें क्लियर नहीं होता है कि ये लोन लिया है तो ये लोन डिपॉजिट है या नहीं है, ये लोन एग्जम्प्टेड डिपॉजिट है या क्या है। तो पहला रीजन तो हमेशा यही होता था कि हमें कंफ्यूजन रहता था। सेकंड रीजन ये होता था कि नो वन वांट टू शो इन द बैलेंस शीट कि कंपनी ने ये डिपॉजिट लिया था। बिकॉज अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी का तो नेचर ही ये होता है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से लोन नहीं, प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी का तो ये नेचर होता है कि डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तो दिस वाज द कंफ्यूजन। बट लास्ट ईयर जब से डीपीटी 3 लेके आ गए हैं, सारा सिनेरियो चेंज हो गया। अब कंपनीज को डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। उस डीपीटी 3 फॉर्म में स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है क्या डिपॉजिट है, क्या डिपॉजिट नहीं है, क्या कौन सा लोन हम डिपॉजिट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, कौन सा लोन नहीं करते हैं। तो इफ आई विल आस्क टू एवरीवन, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि डिपॉजिट लोन, प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी को कहां से लोन लेना अलाउड है और कहां से लोन लेना अलाउड नहीं है। दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिपॉजिट्स। इसके लिए हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं अभी, देन आई विल टेक अप द थिंग्स। इसके लिए आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन कि डिपॉजिट्स में बहुत सारे लोगों की बहुत क्वेरीज आती है कि कौन सा लोन डिपॉजिट है, कौन सा नहीं है। हम डीपीटी 3 फाइल करेंगे तो हमें कौन से रिमोट बटन पे क्लिक करना है, क्या डीपीटी 3 में ऑडिटर सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है या नहीं लगाना पड़ता, क्या डीपीटी 3 में ऑडिटेड फिगर जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या डीपीटी 3 में जो फिगर लिखा है वो बैलेंस शीट से वेरी कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। सो जो भी आपके माइंड में डीपीटी 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज Q&A में मेंशन कीजिए। व्हाटएवर क्वेश्चन यू आर हैविंग, इट विल बी माय प्लेजर कि सभी के क्वेश्चन हम टेकअप करें और उनको आंसर्स करें। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट के रूल्स के अंदर रूल 231, सॉरी डेफिनेशन पे रूल 231 में लिखा है, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर form by the company, but does not include such category of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India। अभी थोड़ा सा इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं कंपनीज एक्ट की ओपन करता हूं, वहां पे डिपॉजिट की डेफिनेशन देखते हैं। टुडे माय मोटो कि सभी को डिपॉजिट क्लियर हो जाए, so it will be the great thing for me। As I have opened on the screen Companies Act, Companies Act के चैप्टर 5 द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स ओपन किया है। चैप्टर 5 में रूल 1 क्लॉज सी मेंशन करेंगे। लेट्स रीड द क्लॉज सी। डिपॉजिट इंक्लूड्स
any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form. So अगर हम इस डेफिनेशन को इतना रीड करते हैं, इस डेफिनेशन को इतना रीड करके एक चीज तो बहुत क्लियर है, all the loans received by the company is deposit. जो भी लोन कंपनी ने लिया है वो, तो whatever loan received by the company is a deposit. तो पहली चीज तो अपने माइंड में डाल लीजिए, कोई भी लोन हम लेते हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, एनबीएफसी से लोन ले रहे हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले रहे हैं, कोई भी लोन जो हम लेते हैं, ऑल द लोन्स आर डिपॉजिट. मैं अगेन बोल रहा हूँ, ऑल द लोन्स आर डिपॉजिट. बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ही बताया था कि प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती है. तो अब इस डेफिनेशन को पूरा पढ़ते हैं. डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड्स. जो ये बट डज नॉट इंक्लूड है ना, ये यहाँ एक नंबर से स्टार्ट होता है और ये एंड होता है हमारा यहाँ 14 नंबर पॉइंट्स पर जाकर. तो जो सॉरी 14 भी नहीं, ये 17 नंबर पॉइंट पर जाकर एंड होता है. तो जो ये हमारा बट डज नॉट इंक्लूड, जो हमारा ये बट डज नॉट इंक्लूड एक नंबर से स्टार्ट हुआ है, ये 17 नंबर पे जाके एंड हुआ है. जो ये 1 to लेकर 17 पॉइंट्स है ना, जो ये 1 से 17 पॉइंट्स है, ये 1 से 17 पॉइंट्स वो वाले लोन है जिनको डिपॉजिट नहीं माना जाता. अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज आज मैं पूरा पर्पस से आया हूं कि सबको क्लियर करके जाना है कि कौन सा लोन डिपॉजिट है, कौन सा लोन डिपॉजिट नहीं है. तो डिपॉजिट की जब भी आपके माइंड में कंफ्यूजन आए कि कौन सा लोन डिपॉजिट है, कौन सा लोन डिपॉजिट नहीं है, कहां से हम लोन ले सकते हैं, कहां से लोन नहीं ले सकते, अभी मैं प्राइवेट की बात करता हूं, तो आप कुछ मत करिए, जस्ट डिपॉजिट के रूल्स ओपन करिए. रूल्स में ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में लिखा है कि एवरी टाइप ऑफ मनी और लोन डिपॉजिट होता है, बट डज नॉट इंक्लूड. मेन फोकस हमें इस वर्ड पे रखना है, बट डज नॉट इंक्लूड. सो जो भी चीज इस बट डज नॉट इंक्लूड्स में कवर होती है वो लोन डिपॉजिट नहीं है. इस बट डज नॉट इंक्लूड में 17 पॉइंट है, 1 to लेकर 17. These are the 17 type of loan. These 17 type of loan does not consider as deposit. इन 17 पॉइंट्स में जो भी लिखा हुआ है वो लोन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ले सकती है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं. Any amount received from the central government, state government, or any amount received from the any other sources by the central government, state government, local authority, any amount received from the statutory authority under act of the parliament. तो अब यहाँ लिखा है कि अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की किसी एंटिटी से हमें कोई लोन मिलता है तो वो लोन डिपॉजिट नहीं है, वो लोन ही माना जाएगा, उसको डिपॉजिट की कैटेगरी में हम कवर नहीं करेंगे. तो दिस इज वेरी क्लियर. जब हम ये 1 से 17 पॉइंट पढ़ेंगे तो ये बहुत क्लियर है कि दैट लोन इज लोन ओनली. अब मैं इसी का फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं. Any amount received as a loan or financial assistance from public financial institute notified by the central government in consultation with RBI. अगर हम किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं, वो लोन ही कहलाएगा, वो लोन डिपॉजिट नहीं होगा. Any amount received by company from another company, this is a very important point. आप लोग अगर 100 कंपनी की ऑडिट करते हैं तो यू विल सी कि 100 में से अगर 90 कंपनीज ने लोन लिया है तो 90 में से 70 कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया हुआ है. There may be a small amount, may be a big amount, but एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन लेती है, ये जनरल टेंडेंसी है इन आवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. तो वो जो लोन लेती है वो लोन लेना अलाउड कहाँ है, वो यहाँ अलाउड है. पॉइंट नंबर 6 रीड करिए. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम अदर कंपनी. तो यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से जो अमाउंट रिसीव करती है उसको लोन नहीं माना जाएगा.
तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द वन कंपनी टू अनदर कंपनी। आज तक हमें जनरली कोई पूछता है एज ए प्रोफेशनल कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन ले सकती है, तो जो एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन ले रही है वो उसको अलाउड कहाँ पे है? तो नाउ आई विल से कि वो यहाँ पे अलाउड है। दिस इज अ प्रोविजन व्हिच अलाउंग अस कि हम एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन ले सकती है। इसीलिए जब भी आप लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, आप हमेशा जब भी देखते हैं कि कंपनी ने दूसरी कंपनी से लोन लिया तो आप ये बोलते हैं कि कंपनी ने कंपनी लोग के कंप्लायंस किए हैं, कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, कंपनी ने डिपॉजिट रिसीव नहीं किया। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब इशू क्या आता है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम बात करते हैं कि यू ऑल आर 230 चार्टर्ड अकाउंटेंट आर अटेंडिंग दिस वेबिनार। आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, आप लोग ऑडिटर रिपोर्ट बनाते हैं। पिछले 7 सालों में ना मिनिस्ट्री ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे रिस्पांसिबिलिटीज बहुत इंक्रीज कर दी है। बहुत सारे कंप्लायंस की रिस्पांसिबिलिटीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे डाल दी है। जैसा कि ऑडिटर रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ कारों की, कारों में स्पेसिफिकली लिखा है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको रिपोर्ट करना है कि कंपनी ने सेक्शन 73 का कंप्लायंस किया है या नहीं किया। अब भाई सेक्शन 73 है क्या? सेक्शन 73 डिपॉजिट का ही है। उसमें आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी। उसमें स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर के साथ आपसे पूछा जा रहा है कि आप कंपनी ने सेक्शन 73 का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। तो जब तक आप लोगों को कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा कि डिपॉजिट क्या है, लोन क्या है, आप कारों में कैसे मेंशन कर देंगे कि कंपनी ने सेक्शन 73 का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है? आप ऑडिटर रिपोर्ट में कैसे लिख देंगे कंपनी ने डिपॉजिट के सेक्शन का कंप्लायंस किया है? सो दिस इज द पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो जनरली अब नेक्स्ट टाइम से अगर हमारे माइंड में पॉइंट आता है कि एक जनरल क्वेश्चन आता है, आपका कोई क्लाइंट, कोई कलीग पूछता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहाँ से लोन ले सकती है, तो ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। हमें ये डेफिनेशन ओपन करनी है और ये 17 पॉइंट ओपन कर लेने हैं कि दीज आर द 17 पॉइंट कि यहाँ से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोन ले सकती है। अब जो प्राइवेट कंपनी 17 पॉइंट्स में लोन ले सकती है, इसमें हमने देखा जैसे फर्स्ट पॉइंट में कवर हुआ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट में लिखा फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन बैंक से या फॉरेन पर्सन से। फिफ्थ पॉइंट में ऐसे, सिक्स्थ पॉइंट में लिखा किसी दूसरी कंपनी से हम लोन ले सकते हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल। अब जो 8 नंबर पॉइंट है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें लिखा है any amount received from a person who at the time of receipt of amount was a director of the company। तो जिस टाइम हमने लोन लिया, उस टाइम अगर वो पर्सन कंपनी का डायरेक्टर है, जिस टाइम लोन लिया उस टाइम अगर वो पर्सन कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो लोन अलाउड है। वो लोन ही माना जाएगा, वो लोन डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। बट इस पॉइंट के साथ एक कंडीशन ऐड कर दी, प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज द केस में बी फ्रॉम whom money is received furnished to the company at the time of giving money a declaration to writing the effect that amount is not being given out of fund acquired by him। तो जनरली हम बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन ले सकती है। जब हम ये बोलते थे ले सकती है, तो कहाँ लिखा था? वो यहाँ लिखा है कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन ले सकती है। तो इट इज मेंशन हियर। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। इस पॉइंट के कारण हम ये पॉइंट हमेशा ऐसे डिस्कस किया करते थे। और कंडीशन, वो कंडीशन भी यहाँ मेंशन की है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन ले रही है, तो एक कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन ले रही है, ये कंपनी अगर डायरेक्टर से लोन ले रही है, तो वो सेक्शन यहाँ पे अलाउड किया है 8 नंबर पॉइंट में उन्हें। तो अगर 8 नंबर पॉइंट में अलाउ किया है कि वो अपने डायरेक्टर से लोन ले सकते हैं, 8 नंबर पॉइंट में स्पेसिफिकली लिख दिया कि डायरेक्टर से लोन ले सकते हैं, बट उसके साथ एक कंडीशन मेंशन कर दी है कि अगर वो अपने डायरेक्टर से लोन लेते हैं तो दे हैव टू चेक कि डायरेक्टर ने जो कंपनी को लोन दिया है वो बोरोड फंड में से नहीं दिया है। डायरेक्टर ने जो कंपनी को लोन दिया है वो डायरेक्टर का खुद का फंड था, उसने किसी से बोरो नहीं किया है। अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आती है कि हमें चेक करना है कि क्या कंपनी ने कोई डिक्लेरेशन ली है या नहीं ली है डायरेक्टर से,
क्या कंपनी के रिकॉर्ड में डिक्लेरेशन मेंटेन है कि कंपनी ने जो लोन लिया है डायरेक्टर के ऑन फंड से लिया है, शेयर होल्डर फंड, सॉरी बोरोड फंड में नहीं लिया। यही मैं बोलता हूँ कि अगर जो डायरेक्टर से लोन लिया है एक तरफ तो मैं बोलता हूँ अलाउड है, बट वही लोन अगर बोरोड फंड में से लिया है तो मैं बोलूंगा कि वो लोन डिपॉजिट कहलाएगा। और अगर प्राइवेट कंपनी के केस में गलती से कोई भी लोन डिपॉजिट बन जाता है तो देयर आर वेरी हैवी पेनल्टीज ऑन द प्राइवेट कंपनीज, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को डिपॉजिट अलाउड ही नहीं है। सेकंड आता है रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट पब्लिक दोनों कंपनीज डायरेक्टर से तो लोन ले सकती है, बट जब रिलेटिव की बात आती है तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी अपने रिलेटिव से लोन ले सकती है, पब्लिक कंपनी अपने रिलेटिव से लोन नहीं ले सकती, बिकॉज यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया है। और प्राइवेट कंपनी जब अपने रिलेटिव से लोन लेगी तो उनसे भी एक डिक्लेरेशन लेगी कि उन्होंने जो लोन लिया है ये लोन उनके बोरोड फंड में से नहीं है। तो अगर हम जनरली बात करते हैं, जनरली इसी स्क्रीन के साथ मैं दूसरी स्क्रीन अगर शेयर करता हूं अपने आर्टिकल की, हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कहाँ से लोन ले सकती है अगर वो लोन डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। अपने डायरेक्टर से ले सकती है, ये पॉइंट नंबर 8 में लिखा था। रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से ले सकती है, ये भी पॉइंट नंबर 8 में मेंशन किया था। बट कहीं भी डेफिनेशन में ये नहीं लिखा कि अपने शेयर होल्डर से ले सकती है, बट मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में लिखा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर होल्डर से लोन ले सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि शेयर होल्डर से लोन लेने की पावर कहाँ पे है? तो जो शेयर होल्डर से लोन लेने की पावर की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ने ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2 एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू किए थे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को 2 एग्जम्पशन दी थी, 2 एग्जम्पशन नोटिफिकेशन दी थी। पहली एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए आई थी वो आई थी 5 जून 2015 को, और सेकंड एग्जम्पशन जो प्राइवेट लिमिटेड के लिए आई वो आई 13 जून 2017 को। सो 2 एग्जम्पशन आई, 5 जून 2015 को, 13 जून 2017 को। उन 2 एग्जम्पशन में उन्होंने मेंशन किया अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्सेप्ट फ्रॉम मेंबर्स अपने शेयर होल्डर से मनी not exceeding 100% of aggregate of paid up share capital or free reserve and security premium account, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने शेयर होल्डर से लोन लेती है तो अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ले सकती है, कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप है तो अपनी इनकॉर्पोरेशन से 5 साल तक शेयर होल्डर से लोन ले सकती है, कोई लिमिट नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर से मेंबर से 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक ले सकती है। अगर 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा लोन लेना चाहती है तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को अलाउड है अपने शेयर होल्डर से 100% से ज्यादा लोन लेना? दिस इज अ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को ऑडिट के टाइम पे भी ट्रिगर करता होगा, बहुत बार क्लाइंट भी पूछता होगा, बहुत बार हमें भी कंसल्टेंसी देनी पड़ती होगी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या शेयर होल्डर से लोन लेना अलाउड है? हमने अभी डिस्कस किया अलाउड है, क्योंकि उन्हें एग्जम्पशन मिली है। कितना अलाउड है? 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व तक अलाउड है। बट प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, कितनी कैपिटल होती है? 1 लाख रुपए की कैपिटल हुआ करती थी, और आज की डेट में तो वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लोग 1-1 हजार से 5-5 हजार से प्राइवेट कंपनी बना देते हैं। अब मेरी 10,000 की कैपिटल है, मेरा कोई टर्न वो रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, तो 10,000 की कैपिटल मतलब मैं मैक्सिमम 10,000 तक लोन ले सकता हूँ। 10,000 का लोन से क्या हो जाएगा? तो मिनिस्ट्री आल्सो अंडरस्टूड दैट कि ये 100% की लिमिट रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने एक और क्राइटेरिया ऐड किया। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिस कैटेगरी 3 में फॉल करती है और ये 3 कंडीशन फुलफिल कर लेती है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितना भी लोन ले सकती है अपने शेयर होल्डर से, कोई इशू नहीं है। कंडीशन क्या है? वो प्राइवेट कंपनी किसी दूसरी कंपनी की एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। उस प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीस उससे लेस होना चाहिए। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ बोरोइंग, कंपनी ने बोरोइंग के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए।
अगर हम इन 3 कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं, पहली कंडीशन, वो कंपनी किसी की सब्सिडरी या एसोसिएट नहीं है। सेकंड कंडीशन, उस कंपनी का बैंक या कॉर्पोरेट से जो लोन है वो ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल या 50 करोड़ व्हिचएवर इज लोअर, उससे ज्यादा नहीं है। तीसरी कंडीशन, उस कंपनी ने डिपॉजिट के रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल कर लेता हूं तो एज अ प्राइवेट कंपनी भी मैं n नंबर ऑफ अमाउंट अपने शेयर होल्डर से एज अ लोन ले सकता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और शेयर होल्डर के लोन में सबसे अच्छी चीज है, शेयर होल्डर को तो कोई डिक्लेरेशन भी नहीं देना है। तो प्राइवेट कंपनीज अभी हमने डिस्कस किया जनरली कहां से लोन लेती है, डायरेक्टर से, रिलेटिव से, शेयर होल्डर से, दूसरी कंपनी से और बैंक से। These are the 4 और 5 टाइप ऑफ पर्सन जहां से प्राइवेट कंपनी ज्यादा लोन लेती है। इसके अलावा भी कहां से ले सकती है वो इस सेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन है। जैसा मैंने बोला, 17 कैटेगरीज है। इन 17 कैटेगरीज को आप अगर वेरी केयरफुली स्टडी करेंगे तो 17 कैटेगरीज विल बी क्लियर योर कंसेप्ट कि प्राइवेट कंपनीज कहां से लोन ले सकती है, कहां से लोन लेना प्राइवेट कंपनीज को अलाउड है। तो अब हम आ जाते हैं ई फॉर्म डीपीटी 3 पर। I will take now 10 to 12 more minutes. उसके बाद हम सभी की क्वेरीज लेंगे। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि प्लीज जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, बी रेडी विद योर क्वेश्चंस। आप Q&A में मेंशन कर सकते हैं बिकॉज डीपीटी 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डीपीटी 3 पे ऑडिटर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहले मैं सबसे पहले यही डिस्कस करता हूं कि डीपीटी 3 ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डीपीटी 3 क्यों फाइल करना पड़ता है। लास्ट ईयर अमेंडमेंट के बाद मिनिस्ट्री ने ये नया फॉर्म लॉन्च किया था, डीपीटी 3 फॉर्म। इसका पर्पस है इस फॉर्म को हर कंपनी को फाइल करना है, चाहे आप स्मॉल कंपनी हो या आप लिस्टेड कंपनी हो, ये सब पे एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट थिंग, डीपीटी 3 फाइल नील का नहीं होता। यहाँ नील से क्या मतलब है, ये फाइल होता है डाटा एज ऑन 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 90 दिन में फाइल होता है 30 जून तक। इस साल कोविड-19 के कारण ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है 30 सितंबर तक। इसमें डाटा जाता है 31 मार्च का। अगर आपकी कंपनी में 31 मार्च को कोई भी लोन स्टैंडिंग था, कोई भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, तो आपको ये फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा। अगर आप बोलते हो मेरे लोन 0 है, मेरे एडवांस से 0 है 31 मार्च को, तो आपको ये फॉर्म नहीं फाइल करना। नील के केस में फॉर्म नहीं फाइल करना। पर अगर आपका 1 रुपए का भी अगर लोन है, मैं नहीं बोलता कि वो डिपॉजिट है, आई एम नॉट गोइंग विद द डिपॉजिट, आई एम सेइंग कि 1 रुपए का भी लोन है। एग्जांपल, मेरा 50,000 रुपए, मैं छोटी सी फिगर ले रहा हूँ, 50,000 रुपए का मेरा लोन है बैंक से, 31 मार्च को मेरी बुक में है, तो भी मुझे ये फॉर्म डीपीटी 3 फाइल करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किससे लोन लिया होना चाहिए तब फाइल होगा, कहीं से भी लोन लिया हो, 1 रुपए का भी अगर लोन 31 मार्च को बैलेंस शीट में है तो ये फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा। सर, इन केस ऑफ एनबीएफसी कंपनी आल्सो, इन केस ऑफ एनबीएफसी, अगर आप एनबीएफसी की बात करते हैं तो मैं उस पर ही आ रहा था। एनबीएफसी कंपनीज पे डिपॉजिट का चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं होता है, डिपॉजिट के रूल ही एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जब डिपॉजिट का चैप्टर 5 और रूल स्टार्ट होते हैं ना, शुरू में ही लिखा हुआ है बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज रूल्स ऑफ द डिपॉजिट्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो उनके ऊपर तो डिपॉजिट का चैप्टर ही नहीं एप्लीकेबल होता, तो वो बाहर ही निकल जाते हैं। उसके अलावा किसी को एग्जम्पशन नहीं दिया है इन्होंने। मतलब you mean to say कि डीपीटी 3 जो है, चाहे जो भी लोन, चाहे डायरेक्टर से है, शेयर होल्डर से है या कहीं से भी है, we have to file डीपीटी 3। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 1 रुपए का भी अगर लोन 31 मार्च को खड़ा है ना, मैं कैटेगरी में जाता ही नहीं, किसी से भी है, आपको डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैंक से होगा तो ही फाइल करूं या कंपनी से है तो ही फाइल करूं या आउटसाइडर से, बिल्कुल नहीं। 1 रुपए का भी लोन किसी से भी है तो आपको फाइल लोन फ्रॉम एनी सोर्स, डीपीटी 3 हैज टू बी फाइल्ड। यस, लोन और एडवांस, इवन एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी खड़ा है तो भी फाइल करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो मोबिलाइजेशन एडवांसेस आते हैं, बट व्हाट अबाउट दैट? अबाउट दैट आई विल से कि उस केस में वो 365 दिन से ज्यादा रहते हैं, कोई इशू नहीं है, अलाउड किया है। जो वो 17 पॉइंट बोले वहां लिखा है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए, बट एडवांस है तो फॉर्म तो फाइल करना पड़ेगा। नहीं, अगर वो 365 डेज से कम रहते हैं, देन
365 डेज से कम रहते हैं तब भी आपको फाइल करना पड़ेगा। एटलीस्ट शो तो करेंगे कि एडवांसेस है। ओके, डिपॉजिट नहीं है मैं मानता हूँ, बट एडवांसेस तो है। मतलब एनी एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स भी जो है वो डीपीटी 3 हैज टू बी फाइल्ड एंड दैट फिगर हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन डीपीटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन हमेशा प्रोफेशनल्स का रहता है कि मतलब डायरेक्टर के लोन के लिए भी फाइल करेंगे, तो आई विल से यस, डायरेक्टर का भी लोन खड़ा है तो भी फाइल होगा। तो हमें सिंपल ही पॉइंट याद रखते हैं ना, हम कहीं कंफ्यूज ही नहीं होते। 1 रुपए का भी कहीं से लोन या एडवांस खड़ा है तो हमें डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो नील का नहीं फाइल होगा। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन विद डीपीटी 3। अब जब डीपीटी 3 फाइल करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? पहला क्वेश्चन आता है कि डीपीटी 3 की ड्यू डेट तो होती है 30 जून और डाटा देना होता है 31 मार्च का। हमारी बैलेंस शीट्स बनती है अगस्त सितंबर में। तो ये क्वेश्चन एवरी प्रोफेशनल का रहता है कि डीपीटी 3 में हम जो डाटा देंगे, चाहे लोन का या एडवांस का, क्या वो प्रोविजनल फिगर्स दे सकते हैं? कि अभी ऑडिट तो हुई नहीं है, हम प्रोविजनल फिगर्स मेंशन कर देते हैं, बिना ऑडिट के हम कैसे मेंशन करेंगे? तो आई विल से नो, अ बिग नो। डीपीटी 3 में आप प्रोविजनल फिगर्स नहीं दे सकते। डीपीटी 3 का रूल है रूल 16। रूल 16 में बहुत क्लियरली लिखा है कि ऑडिटेड फिगर मींस जो फिगर हमने डीपीटी 3 में डाल दी, जब हम बैलेंस शीट साइन करेंगे वो सेम फिगर वहां भी होनी चाहिए। डीपीटी 3 में हमने लिखा बैंक लोन 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग था 2.5 लाख का, 2 लाख का, तो वो सेम फिगर 2 लाख ही वहां होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि ऑडिट करने के मतलब बैलेंस शीट के टाइम फिगर कुछ और आ रही है और डीपीटी 3 के टाइम कुछ और आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो प्रोफेशनल के माइंड में हमेशा रहता है, जो मेरे को हमेशा प्रोफेशनल्स के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलता रहता है कि डीपीटी 3 की फिगर्स क्या प्रोविजनल हो सकती है? नहीं, फिगर मेंशन इन डीपीटी 3 विल बी अ फाइनल फिगर। अगर अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, प्रैक्टिकल सिचुएशन, एजीएम की डेट एक्सटेंड हो गई है, हमारे फाइनेंशियल अब हम अक्टूबर नवंबर में भी साइन कर सकते हैं, बट डीपीटी की डेट तो 30 सितंबर ही है। अभी तक डीपीटी की दोबारा कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। आज की डेट में बात करूंगा तो डीपीटी 30 सितंबर तक फाइल करना है। डीपीटी 30 सितंबर तक फाइल करना है तो आई कैन से दैट कि 30 सितंबर तक हमें अपने सारे लोन्स के फिगर, सारे एडवांसेस के फिगर्स को फ्रीज करना ही पड़ेगा, तभी हम 30 सितंबर तक डीपीटी 3 फॉर्म फाइल कर पाएंगे। सर इसमें पेनल्टी क्या है यदि आप 30 सितंबर की डेट निकल जाती है देन? तो देखो, पहली चीज, कोई भी फॉर्म अगर हम लेट फाइल करते हैं ना, 2 टाइप की पेनल्टीज होती है। एक तो होती है एडिशनल फीस। तो एडिशनल फीस ही तो वो होती है कि जैसे हमें पता है 30 दिन के डिले पे 2 टाइम हो जाती है, 60 डेज के डिले पे 4 टाइम हो जाती है, वो 12 टाइम तक एडिशनल फीस होती है। अगर अब हम 30 सितंबर तक नहीं फाइल करते, जैसा मैंने पहले भी बोला, तो हमारी एडिशनल फीस काउंट होगी वो 1 जुलाई से होगी, क्योंकि 30 जून ड्यू डेट थी। एक तो होती है ये फीस, ये हम पे कर देंगे। दूसरा होता है कि कंपनीज एक्ट का कोई भी फॉर्म, मैं डीपीटी की बात ही नहीं करता, कोई भी फॉर्म अगर हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं ना, तो ये माना जाता है कि वो उस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस हो गया है। तो उस सेक्शन की जो पेनल्टी होगी वो आरओसी के पास पावर होती है कि हम पे लगा सकता है। बट जनरल टेंडेंसी हमने आज तक देखी है, पिछले आप लोग काफी सीनियर्स है, 1956 एक्ट भी देखा है, 2013 भी देख रहे हैं, जनरली आरओसी लेट फाइलिंग को फॉर्म के लिए कंपाउंडिंग नहीं करवाते हैं। बट पिछले 5 सालों में सिनेरियो बहुत चेंज हो गया, आरओसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। पिछले साल मैंने देखा काफी सारे फॉर्म जो लेट फाइल हुए उसके लिए आरओसी ने पेनल्टीज इंपोज की। डीपीटी 3 में नहीं देखा मैंने, लेकिन जैसे एमजीटी 14 30 दिन के बाद एओसी 4 आरओसी ने कंपाउंडिंग्स करवाई है। तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि सिर्फ एडिशनल फीस पे कर देंगे और बच जाएंगे। वो तलवार तो हमेशा लटकी होगी कि कभी भी आरओसी नोटिस दे सकता है। तो डीपीटी 3 की लिए हमें ऑडिटेड फिगर्स चाहिए, प्रोविजनल फिगर से काम नहीं चलेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, डीपीटी 3 जब फॉर्म बनाते हैं ना, 4 रिमोट बटन्स है। पहला बोलता है वन टाइम रिटर्न, दूसरा बोलता है पर्टिकुलर डिपॉजिट्स, तीसरा बोलता है पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट, चौथा बोलता है डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट। पहले इन टर्म्स को समझते हैं, डिपॉजिट क्या है, पर्टिकुलर नॉट कंसीडर डिपॉजिट क्या है। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी डिपॉजिट की। डेफिनेशन में जो ये वर्ड यूज किया था, बट डज नॉट इंक्लूड, दिस बट डज नॉट इंक्लूड मींस ये डिपॉजिट नहीं है। सो जो ये अगर 17 आइटम जो हमने देखे हैं, अगर इन 17 आइटम में से कोई भी आइटम हम अगर हमारी कंपनी में है तो ये माना जाएगा पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट।
इन 17 के अलावा कुछ लिया हुआ है लोन या एडवांस तो वो माना जाएगा डिपॉजिट। तो एज अ प्रोफेशनल जब आप डीपीटी 3 फाइल करते हैं तो सबसे पहली आपकी ड्यूटी ये है कि आप सभी लोन्स और एडवांसेस को एक बाइफिगरेट करें कि ये लोन्स और एडवांसेस में से डिपॉजिट कौन से हैं, नॉन डिपॉजिट कौन से हैं। एंड आई विल से प्राइवेट कंपनी के केस में ट्राई करना कि आपकी डिपॉजिट कैटेगरी में कोई ना आए, वहां पे जीरो ही रहे, बिकॉज प्राइवेट कंपनी को डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं है। अगर गलती से भी डिपॉजिट कैटेगरी में कोई आ गया तो वो नॉन कंप्लायंस है प्राइवेट कंपनी का। तो जनरली प्राइवेट कंपनी के केस में पर्टिकुलर नोट कंसीडर एज डिपॉजिट ही होगा बस। तो आपको पर्टिकुलर नोट कंसीडर एज डिपॉजिट ही होगा। तो जब आप रिमोट बटन सेलेक्ट करेंगे तो आप पर्टिकुलर नोट कंसीडर एज डिपॉजिट पे टिक मार देंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। इससे क्या होगा, डिपॉजिट वाले कॉलम ओपन ही नहीं होंगे फॉर्म में। बट इन एनी चांस बिकॉज ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस आपकी कंपनी में डिपॉजिट भी है तो आपको देखना पड़ेगा अगर डिपॉजिट और पर्टिकुलर नॉट कंसीडर डिपॉजिट दोनों चीजें हैं तो 4 नंबर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। सिर्फ डिपॉजिट है तो 2 नंबर पे और सिर्फ नॉन डिपॉजिट है तो 3 नंबर पे। तो ये तो बाइफिगरेशन आपको करना पड़ेगा फॉर योर ईच क्लाइंट, योर ईच कंपनी कि किसमें क्या चीज है। तो जब बाइफिगरेट करके क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन हम फिल करेंगे। अब एक चीज आती है कि जनरली लोग पूछते हैं, प्रोफेशनल्स पूछते हैं, डिपार्टमेंट पूछते हैं क्या ऑडिटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है डीपीटी 3 फाइल करने के लिए। तो मैं बोलूंगा ऑडिटर सर्टिफिकेट सिर्फ उसी केस में रिक्वायर्ड है जहां पे आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, मतलब जहां डिपॉजिट या डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट। तो जहां डिपॉजिट है वहां तो रिक्वायर्ड है, सिर्फ पर्टिकुलर एंड नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट के लिए ऑडिटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। So we have to be very clear कि डिपॉजिट्स के केस में ही सर्टिफिकेट चाहिए, नॉन डिपॉजिट्स के केस में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब एक चीज आती है, अभी हमने ये 17 पॉइंट्स देखे थे, उन 17 पॉइंट्स में लोन फ्रॉम शेयर होल्डर कहीं नहीं था। फिर मैंने बताया कि लोन फ्रॉम शेयर होल्डर इसलिए अलाउड है क्योंकि प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन मिली हुई है। तो जो प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन मिली है ना, वो लोन फ्रॉम शेयर होल्डर लेने में कुछ कंप्लायंसेस में एग्जम्पशन मिली है। तो हम ये बोल सकते हैं वो है तो डिपॉजिट, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर डिपॉजिट है बट प्राइवेट कंपनी को लेना अलाउड है, वो डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी को लेना अलाउड है। तो जब आप डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करेंगे और आपके केस में आपकी कंपनी ने अगर लोन फ्रॉम शेयर होल्डर लिया हुआ है तो आपको डिपॉजिट वाले रिमोट बटन पे ही क्लिक करना पड़ेगा, आपको ऑडिटर सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं तो आपको कहीं कॉलम ही नहीं मिलेगा लोन फ्रॉम शेयर होल्डर मेंशन करने के लिए। तो अगर आपकी कंपनी में लोन फ्रॉम शेयर होल्डर है तो आपको डिपॉजिट वाला रिमोट बटन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ लोन फ्रॉम शेयर होल्डर है, डिपॉजिट वाला सिलेक्ट करो। लोन फ्रॉम शेयर होल्डर के अलावा अदर लोन्स भी है तो डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट सिलेक्ट करो। और जब भी डिपॉजिट सिलेक्ट करोगे तो आई एम सेइंग कि आपको ऑडिटर सर्टिफिकेट लगवाना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। So these are the some points relating to the DPT 3 and deposit. होप आज के वेबिनार से थोड़ा डीपीटी डिपॉजिट को हम क्लियर कर पाए हैं, थोड़ा हम क्लियर कर पाए हैं कि क्या लोन, कौन सा लोन डिपॉजिट है, कौन सा लोन डिपॉजिट नहीं है और कैसे हमें डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। Now I am starting to take up the queries of the professionals जो उन्होंने Q&A में मेंशन किए हैं। राजेश जी आप ब्रीफ करेंगे क्वेरीज या मैं रीड करूं? नहीं आप कहो तो मैं पढ़ देता हूँ या आप ही पढ़ लीजिए सर, बेटर है आप पढ़ लें सर। मैं रीड कर लेता हूँ ताकि क्लियरली इजी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, ठीक सर। सो मैं एक एक करके क्वेरीज ले रहा हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग टू द मेंबर्स की और भी किसी की कोई क्वेरीज है तो आप मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर आत्माराम, वेदर फ्रॉम बैंक 2 for 31st March 2020 is to be filed again if there is no change in shareholding since 31st March. तो I would like to say बैंक 2 फॉर्म ईयरली फॉर्म नहीं है, पिछले साल पहली बार फाइल करना था, उसके बाद जब भी शेयर होल्डिंग में चेंज आएगा तब हमें बैंक 2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, एवरी ईयर फाइल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अतुल पुरी, अमाउंट रिसीव्ड इवन फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी or advance for services which could not be provided due to some reason for more than 1 year, whether will be considered as a deposit or not. अब मैं बात करता हूं अगर फॉरेन कंपनी से लोन लिया है तो अगर फॉरेन कंपनी से लोन लिया है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके पॉइंट की रीड करवाता हूं। Any amount received from the foreign government, foreign and international banks, multinational financial institution
including international financial corporation, foreign government owned fund, foreign export credit agencies, etc., etc., etc. resident outside India subject to provision of the FEMA and rule regulation made under. अब ये प्रोविजन बोलता है कि अगर आपने किसी फॉरेन कंपनी से, फॉरेन पर्सन से लोन लिया है, उस लोन को लेने के लिए आपने फेमा की गाइडलाइंस फुलफिल की है, तो आपका वो लोन डिपॉजिट नहीं होगा। बट अगर आपने किसी फॉरेन पर्सन से एडवांस लिया है, तो एडवांस को लेने के लिए तो आपने कोई फॉरेन फेमा की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, तो अगर वो एडवांस 365 दिन से ज्यादा बुक्स में खड़ा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो एडवांस डिपॉजिट माना जाएगा, बिकॉज उसके आज तक हमने ट्रीटमेंट बुक्स में एडवांस किया है, उसके लिए हमने फेमा की, अगर हम फॉरेनर से लोन लेते हैं ना तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। हम एडवांस ले रहे हैं तो कोई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की गाइडलाइंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो एडवांस अगर 365 दिन से ज्यादा खड़ा है तो वो डिपॉजिट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अनूप कुमार का, वेदर अ प्राइवेट कंपनी गिव इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट टू अनदर कंपनी वेदर इन सेम ग्रुप और नॉट इन सेम ग्रुप। सर आपका क्वेश्चन है जो ये डिपॉजिट से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज हम डिपॉजिट में तो सिर्फ लेने की बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन है देने के लिए, तो इसके लिए आपको दो सेक्शन देखने पड़ेंगे, सेक्शन 185 एंड 186। अब ग्रुप कंपनी के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप 185 में रिस्ट्रिक्टेड हो तो आप नहीं दे सकते, अगर आप 185 में रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो तो आप दे सकते हो सेक्शन 188 के सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल करके। कैन अ डायरेक्टर गिव लोन इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर? अब इससे डिस्ट्रिक्ट की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, एक पर्सन डायरेक्टर भी है, एक पर्सन शेयर होल्डर भी है, तो इट डिपेंड कि जब मैंने लोन लिया था तो मैंने उसको किस कैटेगरी में लिया। इस पे एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने लोन फ्रॉम डायरेक्टर लिया है तो मैं सिर्फ एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करूंगा और कोई कंप्लायंस नहीं करूंगा, बट अगर मैं दिखाता हूं कि लोन फ्रॉम शेयर होल्डर लिया है तो शेयर होल्डर से लोन लेने के लिए एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग लोन लेने से पहले जनरल मीटिंग करके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी है। सो इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी, क्या उन्होंने वो जनरल मीटिंग होल्ड करके सेक्शन 73 फॉलो करके लोन फ्रॉम शेयर होल्डर लिया है या लोन फ्रॉम डायरेक्टर। सो इट डिपेंड टोटली ऑन द कंपनी कि उन्होंने कौन से कंप्लायंस किए हैं, किस कैटेगरी में लोन एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर योगी राज, whether security deposit received by a company as a security deposit for leasing its investment property to lessee in the case whether such deposit is permitted। see सर जो आपने डिपॉजिट लिया है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है लीज के अगेंस्ट, तो जैसे मैंने बोला जो 17 पॉइंट्स है उन 17 पॉइंट्स में ये पॉइंट कवर है, तो अगर आपने ऐसा कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, बट आपको डीपीटी 3 फॉर्म जरूर फाइल करना पड़ेगा इसके लिए उस कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, can private company take loan from the HUF of director as all the member of HUF are relative to director? HUF should be allowed in my opinion. Sir, my opinion is completely different in this case. कंपनीज एक्ट बोलता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन ले सकती है, अपने रिलेटिव से लोन ले सकती है। रिलेटिव सिर्फ नेचुरल पर्सन हो सकता है, HUF इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। तो HUF अगर आप रिलेटिव की डेफिनेशन देखेंगे ना कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन में HUF को कवर नहीं किया गया है। सो अगर HUF से आप लोन लेते हैं तो वो डिपॉजिट माना जाएगा, वो अलाउड नहीं है कंपनी को लेना। एक सिचुएशन में अलाउड हो जाएगा अगर HUF आपकी शेयर होल्डर है तो, अदरवाइज लोन फ्रॉम HUF इज नॉट अलाउड फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एट ऑल। Next question is, are impressed balances also fall in the DPT category? Impressed balance सर किस कैटेगरी में है, कैसे लिया है, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देंगे इस क्वेश्चन को, so it will be better for me to answer this question. Next question, is DPT3 filed for half yearly basis or annual basis? DPT3 form is annual form. Every year financial year end होने के 90 days में हमें फाइल करना पड़ता है till 30th June. Next question, if advance came from customer and it's squared up after adjust against supply of services for sale, it must show that amount. अब डिपेंड करता है कि एडवांस लिया था वो 365 दिन से ज्यादा है या कम। 365 दिन से कम है तो पर्टिकुलर नोट कंसीडर एंड डिपॉजिट कैटेगरी में दिखा दो, 365 दिन से ज्यादा है तो डिपॉजिट में दिखा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, advance received in company remain outstanding more than 365 days. Whether it is a non-compliance? Yes, definitely it is a non-compliance. What are the consequences? Section 73 की जो penalties है सारी penalties company पे लग जाएगी। Whether compliance, whether company revise its terms or condition for supply of goods even beyond 365 days. आप 365 days के बाद जो भी terms and condition change करते हो वो आपका personal matter है, पर कंपनी लोगों के point of view से वो आपका deposit बन चुका है,
and deposit बनने पे there are the heavy penalties on the company. Next question, there is a difference between advance and deposit. Is DPT applicable for advance? Yes, advance पे भी DPT लगता है. Let me just show you ताकि ये clear ही हो जाए point की. See, point number 7. Any amount received and held pursuant to make according to the project subscription secure advance application money. आगे देखते हैं जो आप एडवांस की बात करते हैं, जो 365 दिन वाले एडवांस की अगर हम बात करते हैं, and any amount received in course and possession of business of the company as an advance for supply of goods or services in manner whatsoever provided is appropriate against goods and services within a period of 365 days of such advance. तो जिसकी भी जिस पर्सन को भी एडवांस से रिलेटेड क्वेरीज है ना, आई वुड रेफर कि उस पर्सन को मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि वो आफ्टर दिस वेबिनार जब भी टाइम मिलता है इस पॉइंट नंबर 12 को, पॉइंट नंबर 12 के ये ए बी सी डी पार्ट है, ई तक सॉरी आगे भी है, यहाँ तक पॉइंट नंबर 12 के पार्ट है. जिसको भी एडवांस और डिपॉजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इस पॉइंट को क्लियरली रीड करे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एडवांस और डिपॉजिट से रिलेटेड. Next question, sometime during audit you observe that interest had not been carried to loan account. In that case there may be difference in the figure. So sir, अब ये चीज तो कंपनी को टेक केयर करनी पड़ेगी कि जब DPT3 फाइल कर रहे हैं तभी ये सब चीजें ऑब्जर्व कर ले. बाद में कुछ भी ऑब्जर्व करेंगे, फिगर चेंज होगी तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन कंप्लायंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, what happen if creditor are not paid more than 365 days in advance falling under DPT3? सर अगर एडवांस लिया हुआ है हमने 365 दिन से ज्यादा और उनको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दिया तो वो DPT3 में फॉल करेगा ही करेगा. इज देयर एनी चांस डेट ऑफ एक्सटेंशन? सब चांसेस तो पूरे हैं, जब सभी चीजों की डेट एक्सटेंड हुई है तो मे बी DPT3 की भी एक्सटेंड हो जाए, बट वी कैन नॉट से विद क्लैरिटी बिकॉज़ ऑलरेडी 3 मंथ एक्सटेंड हो चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लोन टेकन बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर who are also a director in the company, in case of DPT3 need to select deposit column and particular note. इस क्वेश्चन को सर मैं दोबारा रिपीट करूंगा. आपने एक पर्सन से लोन लिया है, वो पर्सन मेरा कंपनी का डायरेक्टर भी है, वो पर्सन शेयर होल्डर भी है. नाउ अब डिपेंड करता है आप कैसे बायोफिगरेट करेंगे कि ये लोन फ्रॉम डायरेक्टर है या लोन फ्रॉम शेयर होल्डर. जब आपने लोन लिया था, लोन लेते टाइम ना कोई भी पर्सन अगर कंपनी अगर डायरेक्टर से भी लोन लेती है ना, सेक्शन 179 में रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. किसी भी पर्सन से कंपनी कहीं से भी लोन लेती है, सेक्शन 179 में रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. आप उस रेजोल्यूशन को चेक करो, जो 179 का रेजोल्यूशन लिया उसमें आपने लोन फ्रॉम डायरेक्टर लिखा या लोन फ्रॉम शेयर होल्डर लिखा. अगर आपने उसमें लोन फ्रॉम शेयर होल्डर लिखा, फिर आप चेक करो कि आपने सेक्शन 73 के कंप्लायंस किए, क्योंकि अगर लोन फ्रॉम शेयर होल्डर लेते हैं तो सेक्शन 73 के कंप्लायंस करने पड़ते हैं. उनमें से एक कंप्लायंस है कि आपको शेयर होल्डर की मीटिंग बुला के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. तो आपको ये सब चेक करना पड़ेगा. ये चेक करने के बाद अगर आप इस क्राइटेरिया पे पहुंचे ये लोन फ्रॉम डायरेक्टर है तो आप पर्टिकुलर नोट कंसीडर एज डिपॉजिट क्लिक करो. बट उसके बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि लोन फ्रॉम शेयर होल्डर है, देन आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे. Every foreign receipt is in compliance of FEMA. Yes, कोई भी foreign receipt लेते हैं तो compliance of FEMA तो हमें करने ही पड़ेंगे सर, different point of view से. Can company grant of intercorporate deposit without interest? चलो अब ये सेक्शन 73 या डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है 186 से रिलेटेड. सेक्शन 186 में कोई भी कंपनी को अलाउड नहीं है विदाउट इंटरेस्ट लोन देना, तो इंटरेस्ट तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो 186 का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा. When shareholder is director 2, then DPT 3.4 return of deposit particular not considered deposit, we can do it through point 3. Sir वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस जस्ट ऊपर किया है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन. Whether deposit received and paid during the year itself and period of 365 days not elapsed, whether it is shown in the DPT 3. अगर 31 मार्च से पहले रीपे कर चुके हैं तो कोई इशू नहीं है, 31 मार्च के बाद रीपे करते हैं तो आपको DPT 3 में दिखाना ही पड़ेगा. लोन टू डायरेक्टर, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनीज फॉर गिविंग? प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनी कोई भी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती है. स्टिल सेक्शन 185 में कुछ एग्जम्पशंस हैं, अगर आप उन एग्जम्पशंस को देखते हैं तो आप दे पाएंगे, बट जनरल कंडीशन में अलाउड नहीं है. Director is a shareholder also, can he give the loan to the company out of borrowed for in the capacity of shareholder or all other condition taking loan from shareholder compliant? Yes,
अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर भी है और वो अपने बोरोड फंड से लोन देना चाहता है और कंपनी शेयर होल्डर से लोन लेने वाली सारी कंडीशन फुलफिल करती है तो ले सकती है। Impressed balances for regular expense incurred by the director of the company. डायरेक्टर कंपनी के ब्याज पे रेगुलर एक्सपेंस करता है तो वो लोन फ्रॉम डायरेक्टर में आप दिखा सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। In case of construction company are the advances allowed? Yes, अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में 365 दिन से ज्यादा के लिए आप एडवांस रख सकते हो, डिपॉजिट नहीं बनेगा बट डीपीटी तो फाइल करना पड़ेगा नॉन डिपॉजिट कैटेगरी में। DPT3 once filed can be revised. There is no option to revise the DPT3 form. Once the DPT3 form is filed, there is no option to revise. You cannot revise the DPT3 form. So hope we have taken up all the queries of the member. So we have today discussed about the AGM extension, DPT3 and the due date under Companies Act till 30th September. I would request to all the participants to the Rajesh ji कि किसी participant की after webinar भी कोई query होती है तो they can directly message me on my WhatsApp number. I am ready to discuss those queries through WhatsApp. Sure, sir. Sure, sir. Now I think there is no query. One query more came, sir. Yes, sir. दो आ गई, sir. Is ADT1 required for first auditor? It is not mandatory to file ADT1. It is just recommendatory. It is the choice of the company. Second question: if creditors are not paid more than 365 days, is to be treated as deposit compulsory or have to file DPT3? Yes. Definitely अगर creditors को 365 दिन तक पे नहीं करते हैं तो एडवांस 365 दिन से ज्यादा का हो गया वो डिपॉजिट बन जाएगा, और अगर 365 दिन से कम भी है तो भी DPT3 तो हमें फाइल करना ही पड़ेगा। There is no option कि हम ना फाइल करें। Okay, sir. Now I think there is no query left, and thank you very much, sir. And over to our convener, CA Rajiv Kohli ji, for a vote of thanks, sir. Thank you, Divesh, for such an enlightened talk. The basic takeaways are 30th September is a very regulated day. उसके लिए JR3 KYC form is a very important form which has to be filed. If you have a DIN number and अगर आप डायरेक्टर से हट गए तब भी ये फाइल होना है. That's what you have clarified. DPT3 is to be filed, MSME has to be filed, and LLP form number 11 has to be filed. So those are things which are for the cut-off date for 30th September, which are just about what 15 more days. Sir, आप तो कुछ 14 तारीख को खत्म ही हो गया, so you have to file with all those companies. Then the next part is that our DPT3 is to be filed as suggested by you. Wherever you've taken any outstanding credit balance or loan or advances, whether they fall in the category of deposits or not, it is mandatory to file DPT3. And technically speaking, also if that is the case, by default the interim balance sheet in normal circumstances should be ready by 30th of June, because the figures for all these items have to be frozen as far as the loans advances received by the companies are concerned. And the other point is our scheme which has given to us is going to lapse on 30th September. Also all the pending forms, everything we are supposed to file on or before 30th September. Otherwise the full penalties will be restored. So this is a very big thing. So all these pending forms of सबको checklist बनाने से as good auditors, हर कंपनी का क्या-क्या चीज pending है उसके सारे form लेके we have to file those forms. Sir, thank you very much for such an enlightenment. Thank you so much, sir. Thank you, sir, very much. Thank you so much. कल सर गुरुजी हैं गिरीश आहूजा जी शाम को 6 बजे सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पर